میرے بیٹے، سردار بیٹے، بابرکت بیٹے، امام نے مسند خلافت کو اس وقت سنبھالا کہ اس سے پہلے کوئی ان حالات سے دوچار نہیں ہوا تھا اور اس کا فتنہ و فساد ہر جگہ پھیل رہا تھا۔ یہ مناسب نہیں کہ تمہارا امام تنہا ہو اور تم اپنی گندم کی اتار چڑھاؤ کی فکر میں رہو۔ ارے یہ تو خلیفہ ہے، انہیں کیا ہوا؟ کیا یہ خلیفہ ہے؟ حسن ابن علی ہیں، ایسا لگتا ہے کل رات صابات میں زخمی ہو گئے ہیں۔ زہر کا ایک قطرہ کسی نہ کسی طرح اس دوا میں شامل کر دے یا پھر امام کے کھانے میں ملا دے۔ اس وقت مدینے کی فضا خوشبوؤں سے مہک رہی تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں ایک ایسا چاند اترا جس کی پیشانی سے نور برس رہا تھا، جس کے چہرے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلک دکھائی دیتی تھی اور جنہیں جنت کے جوانوں کا سردار بننا تھا۔ یہ وہی ہستی تھی کہ جب امت بکھر رہی تھی اور تلواریں کھنچ چکی تھیں تب وہ عظیم کردار سامنے آیا اور صلح کی روشن مثال بن کر تاریخ کے ماتھے پر چمک اٹھا۔ انہوں نے جنگ سے نہیں صبر سے دل جیتا۔ یہ وہ شہزادے ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں تھام کر چلنا سیکھا اور پھر ایک دن اپنی جان کی قربانی دے کر امت کی ٹوٹی نبضوں کو اپنے لہو سے جوڑنے کی کوشش کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم نواسے کا نام امام حسن علیہ السلام ہے۔ یہ 15 رمضان سال 2 ہجری تھا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا کی آنگن میں ایک ایسا نور اترا جس نے اہل بیت کے گھر کو خوشبوؤں سے بھر دیا۔ حضور کو جیسے ہی خبر ملی، آپ بے تابی سے اپنی لاڈلی بیٹی کے گھر پہنچے اور اس نورانی چہرے کو دیکھ کر آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ فرمایا، میرے حسن کو لاؤ۔ جب آغوش میں یہ پاکیزہ بچہ آیا تو آسمان کی طرف دیکھ کر اذان دی اور اپنے مبارک لاب دہن سے آپ کے منہ میں گھٹی ڈالی۔ امام حسن کو یہ شرف حاصل ہوئی کہ بچپن کے 7 سال آپ کی تربیت اپنے نانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ ہوئی اور حضور نے آپ کو اپنا بیٹا اور فرزند کہا۔ حضور کو اپنے نواسے سے حد درجہ محبت تھی۔ روایت ہے کہ حضور اپنے کندھے پر امام حسن کو اور ایک کندھے پر امام حسین کو بٹھاتے اور باری باری دونوں کا منہ چومتے۔ جب حضور نماز میں سجدے کی حالت میں ہوتے تو معصوم حسن و حسین حضور کے پشت پر سوار ہو جاتے اور ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کو لمبا کر دیتے۔ پھر نماز ختم ہونے پر امام حسن کو اپنے گود میں بٹھاتے اور لوگوں کی طرف دیکھ کر فخر سے فرماتے، یہ میرا بیٹا سردار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، امام علی کی شجاعت، فاطمہ زہرا کی تربیت نے امام حسن کو آنے والے وقتوں کے لیے تیار کیا جہاں انہیں تلوار، صبر اور حلم کے ساتھ لڑنا تھا۔ امام حسن جوانی سے ہی نہایت ہی خوش اخلاق، نرم گو اور حلیم طبیعت تھے۔ وہ غصے کو پی جانے والے، معاف کر دینے والے اور ہر حال میں اللہ کی رضا میں راضی رہنے والے تھے۔ جوانی میں آپ نے بے شمار محتاجوں، یتیموں اور مسکینوں کی مدد کی۔ روایت ہے کہ آپ نے 2 مرتبہ اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں دے دیا اور 3 مرتبہ اپنا آدھا مال راہ خدا میں صدقہ کیا۔ جوانی کے دنوں میں آپ عبادت میں وقت گزارتے، تہجد کے لیے اٹھتے اور قرآن کی تلاوت کرتے اور اکثر روزے رکھا کرتے۔ امام حسن کے کردار پر نظر کی جائے تو اخلاق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز نظر تھا، کردار میں حضرت علی کی شجاعت تھی، ہاشم کا جلال، استقلال میں ابو طالب کے تیور اور سرداری میں جناب عبد المطلب کا نقصہ تھا۔ علم و معرفت میں ایسی مہارت تھی کہ حضرت علی کی مجلس میں جب علمی گفتگو ہوتی تو امام حسن اکثر شرکت فرماتے اور سوالات کے جواب میں اپنے والد کی مدد کرتے۔ امام حسن نہایت ہی خوبرو اور پروقار تھے۔ آپ کی شکل و صورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ تھی۔
यहाँ तक कि साहबा कराम फरमाया करते थे कि जब हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करना चाहते तो इमाम हसन के चेहरे को देखते थे। उनके लिबास हमेशा साफ और खुशबूदार होते, लेकिन कभी भी तकब्बुर न करते। रास्ते में हर मिलने वाले को सलाम में पहल करते और गुलामों के साथ भी आजिज़ी से पेश आते। हुजूर की वफात के थोड़े ही दिनों बाद आपके सर से माँ का साया भी उठ गया। नाना और वालिदा की जुदाई ने आपको बहुत गमगीन और अकेला कर दिया और तन्हाई में आप नाना और वालिदा को याद करके बहुत रोया करते। इमाम हसन ने अपने वालिद हज़रत अली की ज़िंदगी में उनका साथ दिया और उनसे हम आहंग रहे, जालिमों पर तनकीद और मजलूमों की हिमायत फरमाते रहे और हमेशा सियासी मसलों को सुलझाने में मसरूफ़ रहे। हज़रत अली की खिलाफत का दौर निहायत ही खून रेज़ था, जब मुसलमानों के दरमियान ही तलवारें खिंच गई थी और हुकूमत और तख्त की लालच में मुसलमान आपस में ही लड़ पड़े थे। लिहाजा 40 हिजरी को मस्जिद कूफा में सजदे की हालत में हज़रत अली पर कातिलाना हमला किया गया। जब इमाम अली बिस्तर शहादत पर थे तो अपने बेटे हसन से फरमाया, ए हसन, मेरे बाद तेरे नाना की उम्मत तेरे सामने तेरे बाबा को गालियां देंगी, तुझे गालियां दी जाएंगी, लेकिन ए हसन तुम सब्र करना। और अल्लाह कुरान में फरमाता है कि जब भी दुश्मन सुलह के लिए हाथ बढ़ाए तो सुलह कर लेना, क्योंकि इस्लाम अमन का नाम है। अपने नाना की सुलह हुदैबिया को याद रखना और जहां भी हो सके अमन को फैलाते रहना। इमाम अली की शहादत के बाद हज़रत हसन पर जुल्म के वो पहाड़ गिरे कि आज भी आपको ज़माना तन्हा तरीन सरदार के नाम से याद करता है। इमाम अली के बाद खिलाफत इमाम हसन के सुपुर्द हुई तो उम्मत मुस्लिमा के हालात दगरगूं थे। इराक़ के लोग फितने में उलझे थे और शाम में अमीर मौविया ने खिलाफत हसन से बगावत करके अपनी अलग रियासत कायम कर ली थी। इमाम हसन ने चाहा कि अमीर मुआविया को शाम से माजूल करके इस्लामी रियासत को मुनज़्ज़िम करें और उम्मत को एक सफ़ में खड़ा किया जाए, लेकिन जल्द ही उन्होंने महसूस किया कि उनके अपने ही साथी खरीदार हो चुके हैं। इमाम हसन पर कई खुफिया हमले हुए, उनकी तलवार तक चुरा ली गई और खेमे पर हमला करके उनके जिस्म पर नेज़े बरसाए गए। इन हालात में इमाम ने देखा कि अगर वो जंग पर इसरार करते हैं तो इसमें सिर्फ उनके चाहने वालों का ही खून बहेगा। लिहाजा इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने एक बड़ी कुर्बानी दी। उनके पास लाखों का लश्कर और हामियों के होने के बावजूद उन्होंने अमीर मुआविया से सुलह कर ली और खिलाफत को छोड़ दिया ताकि उम्मत को टूटने से बचा लिया जाए। खुरासान से लेकर मिस्र तक फैले इस अजीम इस्लामी सल्तनत के तख्त व ताज को छोड़ देने की ये हिम्मत सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे और जन्नत के सरदार के अंदर ही हो सकती थी। सुलह हसन एक अजीम हिकमत थी जिससे उम्मत मुस्लिमा को एक बड़ी खूनरेज जंग से बचा लिया गया, लेकिन ये वही कुर्बानी थी जिसने बाद में इमाम हुसैन के खून से करबला में तकमील पाई। सुलह हसन के बाद भी हर शख्स इमाम हसन के जान का दुश्मन बन बैठा था। कई दफ़ा आपको कत्ल करने की साजिशें की गई। लोग सरेआम आपकी तौहीन किया करते थे, आपके बाबा को गालियां दिया करते थे। यहाँ तक कि मस्जिद नबवी में जुमा के खुतबे के दौरान इमाम हसन और इमाम अली को गालियां दी जाती थी, लेकिन आप किसी से कुछ न कहते। और जब दिल हद से ज़्यादा भर आता तो आप पैदल खाना काबा की तरफ जाते और गिलाफ काबा को पकड़कर कहते कि ए अल्लाह, गवाह रहना, तेरे हबीब की उम्मत ने मुझ पर वो सितम ढाए हैं जो अगर काली रातों पर गिरे तो वो काली रातें सफ़ेद हो जाएं, और अगर सफ़ेद दिनों पर गिरे तो सफ़ेद दिन काली रातों में तब्दील हो जाए। ए अल्लाह, मुझे उस दिन का इंतज़ार है जब तू हिसाब लेगा। और फिर इमाम हसन गिलाफ काबा से अपने आंसुओं को पोंछकर मदीना वापस आ जाते। जब दुश्मनाने अहले बैत के दिलों में इमाम हसन का बुग़्ज़ हद से ज़्यादा बढ़ा तो उन्होंने हज़रत हसन की बीवी को अशरफियों की लालच देकर उसे इमाम हसन को शहीद करने का मंसूबा बनाया। लिहाजा एक दिन इमाम हसन की बीवी ने
खुफिया तौर पर आपके मशकीज़े में जहर आलूद पानी को मिला दिया और जहर मिले हुए इस पानी को पीने के बाद इमाम हसन को खून की उल्टियां शुरू हो गई। इस जहर के असर से आंतें कट कट कर बाहर गिरने लगी। ये देखकर आपकी बहन हजरत ज़ैनब घबरा गईं और वो रोने लगी। रिवायतों के मुताबिक इस जहर ने हजरत हसन की आंतों के 100 टुकड़े कर दिए थे और 3 दिनों तक उन्हें खून की उल्टियां आती रही। पूरा चेहरा सब्ज पड़ गया। लोग हजरत हसन की इस परेशानी को देखकर खुश हो रहे थे, लेकिन मदीने में नेक लोगों की भी एक बड़ी तादाद थी कि जिनका रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। आज मदीने के एक कच्चे घर में जहर में तड़पता ये इंसान कोई और नहीं बल्कि वो हस्ती है जिसे हुजूर अपने कंधों पर बिठाकर बाजारों में घुमाया करते थे और लोगों से कहा करते थे कि ऐ लोगों, ये मेरे बच्चे मेरी आंखों की ठंडक हैं। जिसने इन्हें तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी। आज हुजूर के उसी नवासे की आंतें कट कट कर गिर रही थी। इमाम हसन ने अपने छोटे भाई इमाम हुसैन को बुलाया और ये वसीयत की कि मुझे अपने नाना के पहलू में दफन करना। 3 दिन की शदीद तकलीफ के बाद आखिरकार आप अपने खालिके हकीकी से जा मिले। मदीना में कोहराम मच गया और अहले बैत के घरों पर मातम छा गई। जब आप अलैहिस्सलाम के जनाजे को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की तरफ ले जाया गया और जनाजा थोड़े ही दूर बढ़ा था कि इतने में हाकिम वक्त के सिपाही आ गए और कहने लगे कि इस अली के बेटे को हम हुजूर के पहलू में दफन नहीं होने देंगे। बनु उमैया के सिपाहियों ने तीरों की बारिश शुरू कर दी। इस हमले की वजह से इमाम हसन के जनाजे पर भी तीर लगे। इतने में जनाबे अब्बास ने तलवार न्याम से निकाली तो इमाम हुसैन ने कहा कि ए अब्बास, ठहर जाओ। मेरे भाई हसन ने कहा था कि अगर मुझे मेरे नाना का पहलू ना मिले तो जंग हरगिज ना करना, बल्कि मेरे जिस्म को मेरी माँ के कदमों में दफन कर देना। लिहाजा इस तन्हा तरीन सरदार के जनाजे को जन्नतुल बकी में दफन कर दिया गया।